গুড আফটারনুন, নমস্কার, গুড আফটারনুন। অনপ্যাসিভ দ্য ভারত ইন্টারন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন গ্রুপ কর্তৃক আয়োজিত উপস্থিত রেসপেক্টেড স্যার অ্যান্ড ম্যাম প্রত্যেককে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। এখনো যে সমস্ত স্যারেরা এবং ম্যামেরা উপস্থিত হননি, তো প্রত্যেককেই ওয়েলকাম এবং সুস্বাগতম জানাই। আজ 6 জুন 2024, ভারতীয় সময় 3:45 এবং বাংলাদেশ সময় 4:15 প্রতিনিয়ত এই ওয়েবিনারে অনপ্যাসিভ দ্য ভারত ইন্টারন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন গ্রুপে উপস্থিত থাকি। আমি সুজিত পাল আপনাদের সঙ্গে আছি দমদম কলকাতা থেকে। আজ আমরা 170তম ওয়েবিনার কমপ্লিট করতে চলেছি। ওয়েস্ট বেঙ্গল মঞ্চ বেঙ্গলি কমিউনিটি ও কানেক্ট ওয়েবিনার প্ল্যাটফর্ম বেঙ্গলি হিন্দি অ্যান্ড ইংলিশ, ওয়েলকাম টু অল। আর ইউটিউবে যারা দেখছেন বা শুনছেন তাদেরকেও আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন এবং ভালোবাসা জানাই। ন্যারোনেস এবং নেগেটিভ থটকে দূরে রেখে এই ও কানেক্ট ওয়েবিনার প্ল্যাটফর্মে উপস্থিত থাকব নিজেদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য এবং ইন ফিউচার জেনারেশনকে উজ্জ্বল করার জন্য। আমরা এই ওয়েবিনারে অনপ্যাসিভ দ্য ভারত ইন্টারন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন গ্রুপ ওয়েবিনারে উপস্থিত থাকব। কিছু রুল এবং রেগুলেশন মেনে থাকব। ও কানেক্ট ওয়েবিনারে যখন উপস্থিত থাকব সেই সময় আমাদের কিছু রুল একটু মানব। আনএথিক্যাল বা অনৈতিক কিছু ক্রিয়াকলাপ করব না, যাতে আমাদের আইডিটা নষ্ট হয়ে যায় বা টার্মিনেট হয়ে যায়, সেরকম ধারা কাজ করব না। আমরা আইডিটাকে সুরক্ষিত রাখার চেষ্টা করব এবং প্রত্যেক স্যার ম্যামকে রেসপেক্ট দিয়ে কথা বলার চেষ্টা করব। কোনো স্যার এবং ম্যাম উপস্থাপনা রাখলে বা তার শেয়ারিং রাখলে তখন মাইক আনমিউট করব না, প্রয়োজন হলে হ্যান্ড রাইজ করব এবং ন্যারোনেস এবং নেগেটিভ থটকে দূরে রেখে এই ওয়েবিনারে উপস্থিত থাকব। মানবতার দূত, হিউম্যানিটিকে জাগ্রত করার দূত মহান সিওএস স্যার একটা বিপ্লব আনতে চলেছেন, ঐতিহাসিক বিপ্লব। এই বিপ্লবে আমরা 14 লক্ষ প্লাস ফাউন্ডার সাক্ষী হয়ে থাকব। তার জন্য আমরা ভালো থাকবো, ভালো রাখবো, পরিবারের পাশে থাকবো, যেহেতু ভারত ইন্টারন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন গ্রুপ একটা পরিবার। ও কানেক্ট ওয়েবিনারে উপস্থিত থেকে আমরা অনপ্যাসিভকে সব কিছু জানা বোঝার চেষ্টা করব। প্রতিনিয়ত ওয়েবিনারে ভিজিট করব। অনপ্যাসিভের সমস্ত প্রোডাক্টগুলির সম্বন্ধে আমরা জানা বোঝার চেষ্টা করব। এই ওয়েবিনারমুখী হয়ে ওয়েবিনারে এই সমস্ত কিছু প্রোডাক্টগুলোর সম্বন্ধে জানা বোঝা যায়। তাছাড়াও ব্যাক অফিস থেকে সব প্রোডাক্টগুলোর সম্বন্ধে জানা বোঝা যায়। ওইএস লগ ইন করব, ও ফাউন্ডার লগ ইন লগ আউট করব, আইডি পাসওয়ার্ড সুরক্ষিত রাখবো। এটি আমাদের অনপ্যাসিভের প্রবেশ পথ। এই আইডি পাসওয়ার্ড যাতে আমরা সুরক্ষিত রাখতে পারি, তার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে। www.onpassive.com গুগল ক্রোম বা ব্লগগুলি জানা বোঝার চেষ্টা করব। সেখান থেকে সমস্ত কিছু জানা বোঝা যায়। অনপ্যাসিভ সম্বন্ধে ব্লগের মধ্যে সবকিছু বোঝা যায় এবং ও ফাউন্ডার ব্যাক অফিসই শেষ কথা। সেখান থেকে সমস্ত কিছু কোম্পানির মহান সিওএস স্যার সেইখানে সমস্ত কোম্পানির সমস্ত কিছু আপডেট দেয়া থাকে এবং ভিডিও পর্যন্ত দেয়া থাকে। সেখানটা থেকে আমরা ও ফাউন্ডার ব্যাক অফিস থেকেই সমস্ত কিছু কোম্পানির আপডেট জানা বোঝার চেষ্টা করব এবং সেখান থেকেই সবকিছু অনপ্যাসিভের নলেজ নিয়ে এগিয়ে চলবো। এইভাবেই নিজেকে অনপ্যাসিভের স্রোতে ভাসিয়ে রাখবো একটু একটু করে। অনপ্যাসিভ রূপী মহাসমুদ্র, সেখান থেকে একটু একটু করে নলেজ নিয়ে এগিয়ে চলবো। মহান সিওএস স্যার কে কোটি কোটি স্যালুট জানাবো। এরকম একটা প্ল্যাটফর্ম, অনপ্যাসিভ নামক একটা প্ল্যাটফর্ম আমাদেরকে উপহার দিয়ে দিয়েছেন, যার মাধ্যম দিয়ে অধিষ্ঠিত হয়ে ও সারা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মানুষের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পাচ্ছি, ভিডিওর মাধ্যমে সুযোগ পাচ্ছি। সেই জায়গা থেকে মহান সিওএস স্যার, ওনাকে স্যালুট জানাই ভারত ইন্টারন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন গ্রুপের পক্ষ থেকে। তো আমরা স্যালুট জানাবো। আমাদের অর্গানাইজাররা আছেন, যেনারা রয়েছেন, ওনাকেও স্যালুট জানাবো। অনপ্যাসিভ দ্য ভারত ইন্টারন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন গ্রুপ একটা নামক একটা প্রতিষ্ঠান, যার মাধ্যম দিয়ে আমরা অধিষ্ঠিত হয়ে রয়েছি। সেই অর্গানাইজারগণ অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন এবং মেন্টরগণ, হোস্ট, কো-হোস্ট, প্যানেলিস্ট প্রত্যেকেই এখানে অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন এবং রেসপেক্টেড অল প্যানেলিস্ট, প্রত্যেক স্যার ম্যাম যেভাবে অধিষ্ঠিত হয়ে এই ওয়েবিনারে শোভা বাড়িয়েছেন,
আপনাদেরকে আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানাই। এবং আজকের আমাকে এই প্ল্যাটফর্মটা যিনি উপহার দিয়েছেন, মহান যিনি আমার ব্লেজার, ওনাকেও আন্তরিক শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতা জানাই, যিনি আমাকে এই প্ল্যাটফর্মটা উপহার দিয়েছেন, যার জন্য আপনাদের সঙ্গে আজকে আমি এসে আপনাদের সঙ্গে উপস্থাপনা রাখতে পারছি বা কথা বলার সুযোগ পাচ্ছি। তো সেই জায়গা থেকে আজকের আমাদের সুন্দর একটা টপিক রাখা রয়েছে, সেই বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনায় থাকবো। আমরা শুরু থেকে শেষ অবধি থাকবো। কারেন্ট সিনারিও এবং কিছু মনের কথা এই বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনায় থাকবো। আমাদের বিশিষ্ট স্যার আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন, আমরা দেখতে পাচ্ছি প্যানেলিস্টে মহেন্দ্র সিং গোলা স্যার। ওয়েলকাম স্যার, আপনি ভালো আছেন? ওয়েলকাম স্যার। আপনার কাছ থেকে একটু দুটো কথা শুনি। মহেন্দ্র সিং জি, মোস্ট ওয়েলকাম জি। ইয়েস, ক্লিয়ার সাউন্ড স্যার। মহেন্দ্র জি, মহেন্দ্র সিং গোলা স্যার, মোস্ট ওয়েলকাম। ইয়েস, একটু সাউন্ড দেবেন, রেসপন্স দেন স্যার মহেন্দ্র জি। ওকে, নো প্রবলেম, হয়তো নেট ইস্যু হচ্ছে। তো যাই হোক, আমরা আমাদের মধ্যে চিফ গেস্ট স্পিকার ইন্টারন্যাশনাল লিডার আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন। সেই জায়গা থেকে আমরা ওনার মনোমুগ্ধকর, অবিশ্বাস্যকর, অবিস্মরণীয়কর অনপ্যাসিভের কারেন্ট সিনারিও নিয়ে আলোচনায় থাকবেন। সেই জায়গা থেকে আমরা ওনাকে ওয়েলকাম করে নেব। ওয়েলকাম করে নেবেন। আমাদের মধ্যে বিশিষ্ট ম্যাম উপস্থিত আছেন, আমাদের মধ্যে অনিতা দাস ম্যাম আছেন। তো ওনাকেও আন্তরিক শুভেচ্ছা, আন্তরিক অভিনন্দন জানাই ভারত ইন্টারন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন গ্রুপের পক্ষ থেকে। আপনার সুন্দর মনোমুগ্ধকর নলেজ, আজকে এই ওয়েবিনারে আমরা অধীর আগ্রহে বসে আছি। আপনাদের নলেজ নিয়ে এগিয়ে চলবো। এই অনপ্যাসিভ রূপী মহাসমুদ্রের মাঝখান থেকে একটু একটু করে জল তুলে এগিয়ে থাকবো, এগিয়ে রাখবো। তো আমি এই মুহূর্তে আজকের এই ওয়েবিনারটাকে সুন্দরভাবে উপস্থাপনার মাধ্যম দিয়ে সুন্দরভাবে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। আমাদের মধ্যে বিশিষ্ট ম্যাম উপস্থিত আছেন, তো আমি ওনাকে ওয়েলকাম করব। তার আগে আমি আমাদের হোস্ট মিস্টার গৌতম পাল স্যার, মোস্ট ওয়েলকাম। আপনি আসুন, আপনার সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনার মাধ্যম দিয়ে আজকের এই ওয়েবিনারটা শুরু করব। ইয়েস, মোস্ট ওয়েলকাম মিস্টার গৌতম পাল স্যার, সুস্বাগতম। থ্যাংক ইউ আমাকে ডেকে নেওয়ার জন্যে। অন প্যাসিভ ভারত ইন্টারন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন গ্রুপ অনারেবল হোস্ট এবং কো হোস্ট এবং প্যানেলিস্ট সবাইকে আমার আজকের অনপ্যাসিভ ভারত ইন্টারন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন গ্রুপের পক্ষ থেকে সুস্বাগতম, ওয়েলকাম। আমরা এখানে প্যানেলিস্টে আমাদের দেখতে পাচ্ছি অনিতা দাস, গৌতম রায় স্যার, মহেন্দ্র সিং গোলাজি, রুমা গুপ্তা। এখানে আমাদের সবাই নাম নিয়ে আমার একটা একটা করে সবাইকে আমি সুস্বাগতম জানাচ্ছি। আজকের অনুষ্ঠানটা আমাদের এখানে হোস্টিং করবেন অনিতা দাস, সুস্বাগতম। আর আমার অনপ্যাসিভ আমাদের सीओ, वन का बेस्ट सीओ एस मुफारो, डॉन डील। हम लोग सब सेफ हैंड में है, कोई टेंशन नहीं है, हम सब बिल्कुल सेफ हैंड में है। অনপ্যাসিভ ভারত ইন্টারন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন গ্রুপ হোস্ট, ওভার টু হোস্ট সুইপাল স্যার। সো রিটিউ। থ্যাংক ইউ গৌতম পাল স্যার। অবশ্যই আপনার উপস্থাপনার মাধ্যম দিয়ে একটু নলেজ হলাম। অবশ্যই আমরা প্রত্যেকেই ওয়েলকাম করব, প্রত্যেকের উপস্থাপনা নেবে এবং শেয়ারিং নেব। অবশ্যই সাথে থাকবেন, পাশে থাকবেন, এইভাবেই একটু একটু করে এগিয়ে চলবো অনপ্যাসিভ রূপী মহাসমুদ্র। সেই জায়গা থেকে আমাদের স্যার বলে গেলেন, আমাদের আমাদের এক বিশিষ্ট ম্যাম উপস্থিত হয়েছেন। আমি এই মুহূর্তে ম্যামকে ওয়েলকাম করব। আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন মিসেস অনিতা দাস ম্যাম। আমাকে যদি শুনতে পান তো মোস্ট ওয়েলকাম মিসেস অনিতা দাস ম্যাম। মাইক আনমিউট করে মোস্ট ওয়েলকাম অনিতা দাস सर, ম্যাম। थैंक यू यस सर। सुन पा रहे हैं यस, मेरा मोस्ट आवाज? वेलकम। क्लियर धन्यवाद, साउंड, धन्यवाद कंटिन्यू सर। मैम। ओके सर। ओके, हमारे ये द भारत इंटरनेशनल चैंपियन ग्रुप हमारे जो मंच तैयार किए हैं, हमारे सुजीत पाल सर, गौतम पाल सर और भी जो भी पार्टी इसमें है, और अभी जो प्रेजेंट है, जितने भी होस्ट को होस्ट पार्टिसिपेट हैं, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।
सब कोई अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अच्छे रहिए, मैं यही कामना करती हूँ। और इससे भी ज्यादा मैं हमारे एंजल ऑफ गॉड, हमारे एस मुफारी सर को कोटि कोटि नमन करती हूँ, क्योंकि वो भी अस्वस्थ थे, अभी उसका मैसेज आ गया है कि वो भी अच्छे हैं, बहुत अच्छा। मैं गॉड से यही प्रार्थना करूंगी कि हम लोग को जो इतने बड़े प्लेटफॉर्म देने वाले हमारे एस मुफारी सर, जो हमारे गॉड के रूप में हमारे इस कलयुग का कल की अवतार भगवान जो है, उन्हें भगवान हर समय सदा स्वस्थ रखे और उन्हीं के पीछे पीछे हम लोग नारायणी सेना का जैसा चलते रहें और हमारे ऑन पेसिव और भी तरक्की करते रहें। और हम लोग जिस ये को लेके इसमें आए हुए हैं, जितने भी 14,27,483 मेंबर, फाउंडर मेंबर जो आए हैं, सबको स्वस्थ रखे भगवान और सब कोई जिस आशा को लेके आए हैं वो आशा को पूरा हो जाए, मैं यही प्रार्थना करती हूँ। और आज मैं मंच में कुछ 2 शब्द हमारे ऑन पेसिव के बारे में बोलने का मुझे मौका दिया गया है, मैं रख रही हूँ मेरे बात को। तो सबको मेरा पैनल में जितने भी हैं सबको मेरा बार बार प्रणाम। मैं शुरू कर रही हूँ मेरा ऑन पेसिव का जर्नी, हमारे ऑन पेसिव में कैसे क्या हो रहा है, मैं थोड़ा ऑन पेसिव के करंट सिनेरियो के बारे में चर्चा कर रही हूँ। जैसे विचार विचार जैसे आदमी का है ना, जो बहता हुआ पानी है, यदि आप इसमें गंदगी मिलाइएगा तो वो नाला बन जाएगा, और सुगंध मिलाइएगा तो फिर वही गंगा जल बन कहलाएगा। तो कोशिश करो जिंदगी का लम्हा अच्छे से गुजरे, क्योंकि जिंदगी रहे ना रहे मगर अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती है। इसलिए सभी के लिए मैं ये प्रेरणा करती हूँ, और अपनी भाषा, अपने विचार और अपने आप पर विश्वास करें, क्योंकि चलने वाले परेशान हो सकते हैं लेकिन पराजित नहीं हो सकते हैं, वो पराजित नहीं होंगे। तो इसीलिए हम लोग जो फाउंडर भाई बहन लोग जुड़े हैं, सब कोई बने रहिए और सब कोई स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। हमारे प्रिय फाउंडर भाई बहनों, ऑन पेसिव हमारा डिजिटल दुनिया में सृजन जैसा दिखता है। समय समय पर एक्सटेंशन तो देखते हुए ऐसा लगता है कि उत्पादों, बैंकिंग भुगतान और भुगतान जो प्रमुख विज्ञापन रणनीति, साझेदारी और प्रमुख और उपयोगी सुविधाओं के संदर्भ में बहुत सारे प्रमुख विकास हो रहे हैं। हमें हमें पता चल रहा है ना, 10-10 दिन का एक्सटेंशन बढ़ रहा है। तो क्यों बढ़ रहा है? ये हमारे असर हमें क्यों दे रहे हैं? उनको तो उसमें लॉस हो रहा है ना। ये अगर वायरल हो जाए, वायरल होने से पहले इसे जोड़ा जा रहा है। एक बार उत्पाद जगत का वायरल हमारे AI आधारित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल ओ कनेक्ट में कूद जाएगा, और आने वाले दिनों में बड़ी और अनंत संख्या में उपयोगकर्ता होंगे। ये हमें सबको भी को पता है। हम लोग जो इसमें इन किए हुए हैं ना, जितने भी प्राउड फाउंडर भाई बहन लोग, सबको ही को पता है। ये हम सभी को संकेत मिल रहा है कि डेबिट कार्ड सभी सहयोगियों को जारी किया जा रहा है, और हम समझते हैं कि सब कुछ डेबिट कार्ड के माध्यम से जुड़ा होगा, जैसे कि भुगतान का खरीदारी, कैशबैक, कमीशन, बोनस, यदि कोई हो तो सब कुछ आदि एक समर्पित बैंक के माध्यम से निष्क्रिय नियंत्रण हो सकता है। समय समय पर एक्सटेंशन क्या और अन्य अपडेट को देखते हुए हम सभी को बड़े जादू के घटित होने का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि ये जो बढ़ रहा है इसके पीछे बैकबोन पे काम तो चल रहा है, और एस सर कहते भी हैं। तो ये हमारी वित्तीय चिंताएं, या जिन्हें हम वित्तीय स्वतंत्रता कर सकते हैं, वर्तमान परिदृश्य में बहुत जल्द देखी जाएंगी। आशा है कि सब कुछ सबके लिए अच्छा रहेगा, और समय समय पर जानकारी को
और अपडेट के लिए सभी वेबिनार यूजर्स लीडर सब पर नजर रखें, सकारात्मक रहें और भगवान ऑन पैसिव के माध्यम से सभी को एक स्पष्ट, कानूनी और उत्तम पाचन डिजिटल उत्पाद देना चाहते थे, जो कि विस्तार का संकेत है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ऑन पैसिव डिजिटल दुनिया और इंटरनेट में इतिहास रचने जैसा दिखता है। और हम लोग इस चीज को देख भी रहे हैं। जैसे मेरे हिसाब से कंपनी इन कारणों की वजह से समय लग रहा है कि पहली बार एक आईटी कंपनी में 10 लाख से भी ज्यादा लोग फाउंडेशन के साथ जुड़े हैं। उसी कारण हर व्यक्ति के डिटेल्स के साथ काम करने में समय लगना स्वाभाविक है। जैसे जब कोई अच्छे और नेक मकसद के साथ कोई बड़ा बिजनेस शुरू करने जाता है, तब बहुत सारे स्वार्थी और भ्रष्ट सिस्टम उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं, तो उनसे निपटने में भी समय लगना स्वाभाविक है। जब दुर्भाग्यवश कंपनी के खुद के ही सिस्टम में कुछ गद्दार लोग कंपनी के खिलाफ काम करते हैं, तब अनेक गलतियां को हर्जाना उठाने के से लेकर सारी चीजें स्टार्ट करने तक कंपनी को समय लगता है। और अफोर्डेबल सब्सक्रिप्शन प्राइस में अच्छे से अच्छे फीचर्स के साथ अनेक इंटरनेट टूल्स को बनाना और उन्हें मार्केट में उतारना, इस प्रोसेस में समय लगता है। जो आईटी का नॉलेज रखते हैं उन्हें ये बात समझ आती है। और फिर कई बार कंपनी पर अलग अलग प्रेशर होते हैं। इनके वजह से तय की गई चीजें समय पर करने में असफलता का सामना करना पड़ता है। हमारे एस सर के साथ भी यही हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर कंपनी के कुछ सदस्य एमएलएम की तरह कंपनी को प्रमोट करते हैं, तब भी उसका प्रभाव कंपनी के कामकाज पर पड़ सकता है। फिर कंपनी अपने टूल्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टच दे रही है, जो सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी में से एक है। इसे सफलतापूर्वक टेस्ट करके दुनिया के सामने लाने के समय लगना स्वाभाविक है। ये एक आईटी कंपनी है, जिस कारण इसमें इतना हमारा समय ले रही है। हमारी कंपनी समय ले रही है, लेकिन प्रोडक्ट मार्केट में आने से पहले ही उसने उनके विज्ञापन शुरू कर दिए हैं। इससे टूल्स जल्दी वायरल होने में मदद मिलेगी। और कंपनी को 100 से भी ज्यादा देशों में अपने टूल्स उतारने हैं, तो हर देश का अलग कानून, अलग भाषा, अलग बैंकिंग सिस्टम, अलग नियमों को समझकर डिसीजन लेना कोई आसान बात नहीं है। फिर बाकी कुछ लीगल और टेक्निकल डिसीजन होंगे, जिसके वजह से समय लग रहा है। तो मुझे तो इस बात की खुशी है कि कम से कम हमारे कंपनी में कुछ न कुछ हलचल तो दिख रही है। कम से कम सीईओ कुछ न कुछ बातें तो रखते हैं। दुबई मेट्रो स्टेशन देखकर तो विश्वास और भी बढ़ गया है। बाकी मुझे अपनी कंपनी पर भरोसा है, और आप भी विश्वास और संयम रखें। मेरी रिक्वेस्ट है सभी प्राउड फाउंडर से कि हमारा ये जो कंपनी है, ये हमें सब कुछ देने वाली है, और हमारे एस सर इसमें लगे हुए हैं। जैसे 2018 में, वर्ष 2018 में एक अलग अवधारणा के साथ दुनिया के 200 से अधिक देशों में एक स्टार्टअप के रूप में उभरने वाली आईटी कंपनी ऑन पैसिव, हम सभी शुरुआती पक्षी या सहयोगी से जो शुरुआत से हो, किसी न किसी तरह से कंपनी में जुड़े।
हुए हैं। तो ओ कनेक्ट के नए संकरता की शुरुआत और नई सुविधाओं के उन्नयन के साथ वर्तमान परिदृश्य एक अलग तरीके से है। हम कह सकते हैं कि यह एआई संचालित उपकरण हमारे सभी आगामी उत्पादों के रीढ़ होगा। ये ओ कनेक्ट जो हमारा है ना, यही जब ये चालू, जब कि ग्लोबल लॉन्च होने के बाद जब हमारे सब कुछ तैयार है और होगा, तो सोचिएगा कि हम लोग का क्या होगा। हम कह सकते हैं कि इस अशुल्क उत्पाद से ही सभी को वह लाभ मिलेगा जिसकी सभी सोच रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं। यह उत्पाद एक बड़ा उत्पाद होगा जहां दुनिया इसमें शामिल होगी और उपयोगिताओं और हम सहयोगियों को भी इसका लाभ मिलेगा। अगली प्रक्रिया ओ वेरीफाई होगी, जिससे मौजूदा एफिलिएट और उपयोगकर्ताओं का सत्यापित करने के लिए पेश किया जाएगा और फिर डेबिट कार्ड की उम्मीद की जा सकती है ताकि इसे वर्चुअली एकीकृत किया जा सके और भौतिक रूप से भी ऑर्डर किया जा सके, जिसका उपयोग सेकंड के एक अंश में वैश्विक रूप से किया जा सके और अन्य उत्पाद एक बार वो कनेक्ट पूरी तरह से वायरल हो जाने के बाद लाइव में लग जाएंगे और फिर अन्य प्रक्रियाएं जारी होगी। तो हमारे एस मुफारे सर सब कुछ के लिए तैयार है और हमें कर भी रहे हैं और हम लोग सब कुछ को देख भी रहे हैं। तो हमारा कहना है कि हमारे जितने भी ऑन पेसिबियन साथी हैं, सभी कोई अपने विश्वास को लेके जैसे आगे बढ़ रहे हैं और इसमें है बने हैं, उसी तरह बने रहें। हमें देखने को सब कुछ मिल रहा है कि हमारा ये जो है नॉन पेसिव का कैसे क्रांति ला रही है। जब भी देखिए, इसके पहले भी हमारे यहाँ जब जब जो कुछ हुआ है, जैसे हमारे जीवन में और इसके पहले क्रांति आई है, जैसे उससे अपने जैसे पैर पसारने के लिए, जमाने के लिए जब कुछ वक्त लगता ही है, जैसे फेसबुक, अलीबाबा, अमेजन, गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट आदि क्रांतिकारी कंपनियों ने कुछ जैसे लोगों का फाउंडरशिप तो दी होगी, लेकिन तब उस वक्त जो संयम नहीं रख सके और निकल गए, तो उनको देखिए, उनको छोड़ बाकी सब लोग बिलियन ऑफ डॉलर्स के धनी हो गए और वक्त लगता है लेकिन इतिहास बदलता है। उसी तरह हमारा ऑन पेसिव को खड़ा करने के लिए इन 5 साल में सीईओ मिस्टर एस मुफारे यूएसए ने अपने मिलियन ऑफ डॉलर्स लगाकर अपने हैदराबाद तथा अन्य दुनिया भर के बेस्ट ऑफ लीगल जगहों के टेक्निकल लीगल टीम के साथ दिन रात अथक परिश्रम किया है, आज भी कर रहे हैं। उनकी हिम्मत, उनकी मेहनत और उनकी लगन को सभी देख रहे हैं। उसके एक्टिव तथा जिम्मेदार फाउंडर की तरह सब कुछ को देखते हुए मैं उसे सलाम करती हूँ कि हमारे आज 2018 से ही शुरू हुई थी मेरी कंपनी, ज्यादा दिन नहीं। यही तो बोले कि अभी हम लोग को क्या पता, जब आया था अलीबाबा बोलिए, अमेजन, तो कितना समय लिया था, फेसबुक, अभी इंस्टाग्राम, उस टाइम तो हम लोग नहीं जानते थे। अभी हम लोग ऑन पेसिव में आके हमारे ऑन पेसिव के बारे में हम लोग कितना तरह तरह का सोचते हैं, अभी तक ये नहीं हुआ। अभी तक क्यों एक्सटेंशन बढ़ रहा है, एक्सटेंशन, ये मन तरह तरह का बात हमारे मन में आती है। लेकिन नहीं, एक कंपनी, इतना बड़ा विशाल कंपनी का बनना, उसको सब कुछ लाना, एक के बाद एक जितना भी टूल्स है हम लोग कितना यूज भी कर रहे हैं, हमें बीटा टेस्टिंग के लिए दिया भी गया है। सब साथियों हम लोग कुछ ना कुछ तो यूज कर ही रहे हैं। हम लोग देख ही रहे हैं कि हाँ, हमारे कंपनी हमारे क्या क्या कर रहे हैं और हमें क्या क्या दिए हैं। अभी भी अगर हमारे एस मुफारे सर अगर कुछ इस तरह ग्लिचिंग ना आता, अगर उनके साथ इस तरह परेशानी ना होती, हम लोग तो अपने घर में बैठ के
मीटिंग कर रहे हैं और बस ये वो चर्चा कर रहे हैं। लेकिन हमारे एस मुफारिस सर किन किन हालातों से गुजरे, उनके साथ क्या क्या हुआ, अगर ये सबको हम लोग को भोगना पड़ता तो अपने आप सोचिए कि हम लोग के साथ क्या होता, हम लोग कहाँ तक खड़े रहते। लेकिन एक जैसे सर बोले हैं ना, जो कि हम हारने वाले में से नहीं है, डू एंड डाई, उनका जो कहना है करेंगे या मरेंगे, वो जो वादा किए हैं वो अब हम लोग को दिखा भी रहे हैं। वो कनेक्ट का देखिए, हम लोग जूम में कैसे मीटिंग कर रहे थे, लेकिन आज वो कनेक्ट में हम लोग किस तरह कितना ये 40 मिनट में जूम में हम लोग आउट हो जाते थे। अभी हम लोग घंटों घंटों बैठ के मीटिंग कर रहे हैं। कितना सारा टूल्स ऐड डाउन किए हैं हमारे वो कनेक्ट में, फीचर सब कितना सुंदर सुंदर चीज है कि उसको अगर अपने भी लिंक क्रिएट करके बैठ के अगर आप सीखना चाहते हैं, जो भी फाउंडर मेंबर लोग हैं जानना चाहते हैं, तो उसमें अपने आप में करते रहिए दिन भर, अगर कोई भी टाइम क्रिएट करके देखिए। इसमें हमारा चैट का ही दिया हुआ है, हम चैट कर सकते हैं, हम गाना भी देख के वीडियो में देख सकते हैं, कुछ भी कितना सुंदर सब कुछ दिया हुआ है। इसमें सीखने का भी प्रयास हमको करना होगा, आपको करना होगा सभी को। तो अभी जो 10-10 दिन का जो एक्सटेंशन बढ़ रहा है, वो भी हमारी भलाई के लिए, क्योंकि इसमें हमारा तो पैसा नहीं ना लग रहा है। अभी जो हम लोग इसमें है, बढ़ रहा है जितना जी नुकसान बोलिए हमारे एस सर को हो रहा है, हम लोग को कुछ नहीं। हम लोग, हाँ, हम लोग पूरा ये है कि हमारा एप्पल्स कब आएगा, एप्पल्स कब आएगा, यही हम लोग का टेंशन है। तो एप्पल्स भी आएगा, वो भी, उसके लिए भी सब कुछ बन रहा है, बन गया है। इसीलिए हमें सब कुछ देखते हुए हमें धैर्य तो रखे हैं सब कोई, और भी धैर्य का परिचय हमें देना होगा, और हमें एस सर के साथ रहना होगा, साथ देना होगा। ओ कनेक्ट का देखिए विस्तार से क्या दिया है कि ऑन पैसिव के माध्यम से जीवन में एक बड़ी तस्वीर देखने के लिए क्या करना होगा ना, धैर्य रखना होगा। कितना बड़ा दिया है हमारा ओ कनेक्ट। इस जूम में इतना कुछ है नहीं है, हम लोग तो इतना जानते नहीं थे सर। हम लोग अभी ऑन पैसिव के माध्यम से ही इतना कुछ सीखे कि हाँ, हमारा ये इंटरनेट जगत क्या है। नहीं तो इसके पहले हम लोग का एक छोटा मोबाइल रहा करता था, उसी में हाय हेलो कर लिए, बस हो गया। लेकिन आज बोलिए कि ये अपॉर्चुनिटी जो दिए हमारे एस मुफारे सर, तो सबका लाइफ चेंज कर दिए। अभी तो सोचिए अपना दिमाग में कि हम लोग कितना डेवलप किए, ये अपने आप में सबको ही सोचिए। इतना कोई थे जो भी अपना बिजनेस में थे, हम लोग घरेलू औरत घर का काम में बिजी रहते थे, जो भी दुकानदारी कर रहे हैं, कुछ नौकरी कर रहे हैं, लेकिन ये एआई कंपनी के बारे में इतना जानकारी सभी को नहीं था। लेकिन आज हमारे पास ऑन पैसिव के आने के बाद, ऑन पैसिव में पैर रखते हुए हम लोग का जिंदगी दिन व दिन तरक्की के आगे हम लोग जा रहे हैं। सोचिए कि ऑन पैसिव का फाउंडरशिप लेने के बाद अगर इतना तरक्की है, तो जब हमारे ऑन पैसिव का एप्पल्स शुरू हो जाएगा तो हम लोग का लाइफ क्या होगा, उस टाइम सोचिए कि हम लोग कहाँ रहेंगे। तो इसीलिए इस सोच के साथ सबको ही आगे रहिए और अच्छे से रहिए। और देखिए हमारे ऑन पैसिव ऐसा वैसा कंपनी नहीं है, सबको ही देख रहे हैं, सबको ही जान रहे हैं, और सबको ही यहाँ धैर्य का परिचय दिखाए हैं। ऐसा हम ही नहीं, क्योंकि सब कोई यहाँ पर बने हुए हैं। कोई मीटिंग में है, कोई नहीं है, कोई बाहर है, कोई नेता लोग, लीडर लोग से बात करके बोलिए, कैसे भी हो, लेकिन हर चीज को देख रहे हैं और सीख रहे हैं। और यही हम लोग का भी मेन काम है। इसीलिए जितने भी फाउंडर भाई बहन लोग हैं, हमें धैर्य के साथ रहना है और हमारे एस सर का साथ देना है। हमारा हर काम तैयार है और ज्यादा देरी नहीं है, मेरा सब कुछ हो गया है। हमारे एस मुफारे सर कहते हैं ना कि हम जैसे हम दुनिया को हिला देना चाहते हैं, हम यहाँ वफादार लोगों को खुश करना चाहते हैं। उनका देखिए एक एक वेबिनार में उनका बात को सुनिए, क्या हमने कुछ प्रगति देखी है, आपको हमारे साथ जुड़े रहने पर गर्व होता है। अभी बहुत अधिक जानकारी जल्दबाजी में न देंगे, क्योंकि देखिए, और उन्होंने यह भी कहा है कि हम ज्यादा जानकारी उजागर नहीं करना चाहते हैं।
सब कुछ अच्छा है और हमारी हरकतें आपको चौंका देगी। एक एक लफ्ज को, एक एक पॉइंट को देखिए कि कैसे बात किए हैं कि उसका हरकत मतलब हम लोग को चौंका देंगे। हम लोग चौंक जाएंगे कि क्या ऐसा हरकत करेंगे, जिस आशा में हम लोग हैं। फिर कि मैं मूल्य संचय करने के लिए उत्सुकता से कड़ी मेहनत कर रहा हूँ। आप उस विश्वास से सचमुच प्रसन्न होंगे। जरूर हम लोग प्रसन्न हैं, क्यों नहीं। फिर ऑन सिर्फ हमारी यात्रा का पहला चरण है, और चरण 2 या 3 क्या है, यह आपकी कल्पना पर छोड़ दिया गया। मैंने सोचिए, हम लोग कल्पना कीजिए कि अगर ऑन पे सिर्फ फर्स्ट चरण में हम लोग को क्या मिलने वाला है मिलेगा, तो इसके बाद हम लोग को और क्या होगा। तो मैं जल्द ही नीला प्रिंट दिखाऊंगा। दुनिया भर में हमारे पास जो प्रतिभा है, तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं जिद्दी क्यों हूँ। वो अपना एक एक शब्द को कोई ना कोई वेबिनार में प्रकट किए हैं। मैं हर किसी को साथ उनकी वफादारी, उनकी मानसिकता और जुड़ाव और कई तरीकों से नफरत के आधार पर अलग अलग व्यवहार करता हूँ। देखिए, और बुराइयां है, ये व्यापार है, ये हम है। हम आपको प्रभावित करना चाहते हैं। मैं औसत लोगों के लिए नहीं हूँ। मेरा लक्ष्य सकारात्मक तरीके से कुछ महत्वपूर्ण करना है, तो वो महत्वपूर्ण कर ही रहे हैं हम लोग सब कुछ को। जबकि जो जिस समय से आए थे, हम लोग आए थे कब, हम आए थे 2020 में। 2020 से जो हम देख रहे हैं आज तक, मेरा ऑन पेशी बहुत बहुत ऊंचाइयों को छू चुका है। रही बात एप्पल्स का, ये एप्पल्स का बौछार भी जब शुरू होगा, भाई बहन लोग जितने भी हैं हमारे पार्टिसिपेट भाई बहन लोग, दुख का बात नहीं, उस सुख घड़ी का इंतजार हम लोग का और ज्यादा दिन नहीं। जो दुख हम लोग झेले, जिसका भी जो प्रॉब्लम था जो झेले, वो पार हो गया। क्योंकि हम लोग हर चीज को देखते हुए, जैसे हमारे गो फाउंडर से वो फाउंडर में आए, उसके बाद हमारा ओएस आया। मेरा ऑन पे सिर्फ देखिए, मेरा बुर्ज खलीफा में, दुबई बुर्ज खलीफा में, वहाँ कितना कहाँ ऑफिस हुआ देखिए। बुर्ज खलीफा में, दुबई में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, इंडिया का हैदराबाद में, सिंगापुर में, बांग्लादेश में। तो ये क्या मजाक वाली बात है। एक जगह नहीं, इतना जगह हमारा ऑन पेसिव का ऑफिस, मेरा डेटा सेंटर, मेरा बुर्ज खलीफा का पहला ऑफिस मेरा 134 फ्लोर में, फिर दूसरा ऑफिस मेरा 151 फ्लोर में। देखिए, सुपर मजलिस कार का भी वहाँ चर्चा जब हुआ, मेट्रो स्टेशन का भी, हमारे ये जो लोग गए हैं दुबई, वो लोग जान रहे हैं, प्रचार प्रसार को देख रहे हैं। जो जैसे समिट, पुलिस समिट का जो वाला जो हुआ, उसमें भी हमारे ऑन पेसिव को ही स्पॉन्सर बनाया गया था। इंटरनेशनल का पुलिस हमारे जो समिट हुआ, तो उसमें हमारे वो मीडिया ऑन पेसिव ही का मीडिया इसका ही किया, तो संचालित किया। तो सारा चीज को हम लोग ऑलरेडी देख ही रहे हैं। इजिप्ट में भी इसका ही है, तो कौन जगह नहीं है और क्या न बनाए हमारे एस सर। तो हम लोग इतने कुछ को देखते हुए हमें धैर्य नहीं रख सकेंगे कि हाँ और थोड़ा ही दिन है। हमारा ऑन पेसिव एकदम दिन दुना रात चौगुना जो इतना कुछ किया, हमारे एस मुफारी सर, सबको ही हर टाइम प्रे कीजिए कि हमारे एस सर बढ़िया रहे, हमारा टेक टीम स्वस्थ रहे, ताकि हमारा बिजनेस को और आगे ले जाएंगे। हम लोग को कैसे, जैसे एस सर बहुत सारा मीटिंग में बहुत बार बोल चुके हैं कि आप लोग, मैंने 2 साल के बाद मैं और पूछूंगा कि आपको और क्या जरूरत है। इतना देने के बाद भी तो सोचिए, और जितना कंपनी में इनकम आएगा 50% हम लोग को बटेगा, 50% कंपनी के पास रहेगा। तो क्यों कि वो और फिर पूछेंगे। पहले ही ओबेलेस को भी ला दिए हैं, किस लिए कि हम पैसा को करे क्या। हमारे जितने रिलेशन, आस पास पड़ोस, दुनिया भर को देख के भी हम लोग मतलब क्या बोले, एक राजा बादशाह राजा रंग का जिंदगी जिएंगे। तो ये क्या झूठ मूठ बात है? नहीं, ये शुरू होने का देर है। दोस्तों, ये ज्यादा दिन और नहीं है, हमारा सब कुछ बन के तैयार है। हम लोग
बहुत जल्द जीत के करीब है। और गेम तो हम लोग जीत चुके हैं। हम लोग का जो जो चीज को देखते हुए हम लोग आ रहे हैं, 2018 से जो है, 2019 से है, जो जैसे समय से है, लेकिन वो सब जो जितना आगे है वो उतना आगे से देख रहे हैं। लेकिन सारा चीज को देखते हुए कि हाँ, मेरा ऑन पेसिव है क्या, ये हमारे ऑन पेसिव प्लेटफॉर्म जो दिया, सोचिए हम लोग बहुत भाग्यवान है। हम लोग का तकदीर बहुत साथ दिया है। जो जो भी हम लोग को जिस टाइम ये अपॉर्चुनिटी दिए थे जिसको भी, जो और हम लोग इसमें इन कर गए, तो सच में सर का तो स्लोगन ही है, जो इन किया वही सिकंदर। तो हम लोग सिकंदर है। हम लोग इसमें इस गेम को जीत चुके हैं। हम लोग सिकंदर भी है। और हम लोग आगे ऑन पेसिव का मजा भी लेंगे। इसीलिए सब कोई को मेरा यही रिक्वेस्ट है, सब टाइम सब कुछ करते रहिए जो जिसका काम है। अपना स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अभी बहुत तरह का बीमारी बहुत तरह का हो रहा है। इसलिए क्योंकि हम सबको ऑन पेसिव का एंजॉय भी करना है। आगे जाके हम लोग इतना बड़ा परिवार जो है, सब कोई हम लोग का क्या काम रहेगा, क्योंकि आज पैसा के लिए ही ना आदमी नौकरी कर रहा है, 10 घंटा का 12 घंटा का जो भी काम कर रहे हैं, दुकानदारी कर रहे हैं। लेकिन अगर उस समय हमारा जब ऑन पेसिव का शुरू हो जाएगा एक पल्स, तो हमें घर बैठे हर टाइम अगर पैसा हमारे वैलेट में आने लगेगा, तो मैं क्यों उतना कष्ट करूं। उस टाइम मेरा क्या रहेगा, हमारा इतना बड़ा परिवार ऑन पेसिवियन जो जहां है, कोई दिल्ली में है, कोई आगरा में है, कोई कलकत्ता में है, सब कोई का हम लोग का परिवार के साथ आना जाना यही। और हम लोग का कितना जगह मीटिंग, कितना कुछ चर्चा, कितना कुछ बढ़ जाएगा हम लोग का जिम्मेवारी भी। और फिर हम लोग क्या करेंगे ना, एक सेलिब्रिटी का जिंदगी जिएंगे। क्या आज नेता जी रहा है, क्या डॉक्टर जी रहा है, क्या मंत्री जी रहे हैं, कोई नहीं। हम लोग ऑन पेसिवियन के आगे सब फीका पड़ जाएगा। क्योंकि जहां भी जो कुछ करना होगा, हम लोग ऑन पेसिवियन के पास उतना दौलत रहेगा, उतना दौलत रहेगा कि हम लोग खड़े हो जाएंगे उस जगह। किसी का बेटी का शादी करना है, किसी का बच्चा का पढ़ाई नहीं हो रहा है, किसी का घर नहीं है, किसी का खाने पीने का कष्ट है, तो हम लोग ऑन पेसिवियन क्या करेंगे, हम लोग का यही काम रहेगा कि हम लोग सारे जहां को देख लेंगे। इसीलिए हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा फाउंडर मेंबर है, और हमारे इंडिया ही सबसे गरीब देश है बोलिएगा तो। इसीलिए हम लोग फाउंडरशिप लिए हैं, और हम लोग साथ में एक साथ यही वादा कीजिए कि हम लोग साथ बन के रहेंगे, और हम लोग दूसरों का मदद के लिए मददगार बनेंगे। जहाँ जिसका गांव में हॉस्पिटल नहीं है, जिसका गांव में स्कूल नहीं है, हम लोग 10 ऑन पेसिवियन एकजुट होके वहां हम लोग उस तरह काम करेंगे। तो हम लोग सेलिब्रिटी नहीं बनेंगे, तो हम लोग को सलाम नहीं करेगा आदमी, तो किसको करेगा। तो ये भी अपॉर्चुनिटी मिला है सबको अपना भाग्य से। क्योंकि अगर देखा जाए, कितना सेठ साहूकार आदमी है, कितने को हम लोग भी बता चुके हैं, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी दिया गया लेकिन लिए नहीं, इसमें इन नहीं किए। तो वो लोग का भाग्य जिसका खराब है वही लोग इसमें नहीं जुटे हैं। इतना बड़ा ये दुनिया में कम आदमी नहीं है, तो उतना में हम लोग कितना 4 आना भी आदमी हम लोग इसमें इन नहीं किए हैं। तो हम लोग एक एक गांव एक एक ही को हम लोग देख लेंगे, सबको संभाल लेंगे। और सब कोई अनपेसिवियन अभी जो भी जैसे जगह पर है, जिसका मन का विचार जैसा है। लेकिन पैसा ऐसा चीज है भाइयों दोस्तों, कि पैसा आदमी का मन को चेंज कर देता है। और उस टाइम सब गिला शिकवा सबका सबसे हट जाएगा। सब कोई एक दूसरे के लिए हम लोग क्या ना करने के लिए उतर आएंगे। इसीलिए हम ही लोग को दिया गया, हम ही लोग को मिला, और वैसे ही मन वाला आदमी को मिला। अगर इसमें देखिए कितना तो आदमी निकल भी गए, क्यों निकल गए, वो लोग ऐसा थे ही नहीं, इसीलिए वो लोग को कैंसिल बटन दबा के निकल जाना पड़ा। क्योंकि धैर्य भी नहीं रखा, मन भी उन लोग का विचलित हुआ, तो कुछ कारण। और हम लोग जो बने हैं तो बने हैं, हम लोग ऑन पेशिव का जो भी इंजॉय है जरूर करेंगे साथ में सब कोई। और सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, सब कोई बी पॉजिटिव रहिए, अलर्ट रहिए, हर समय अपना बैक ऑफिस पर नजर रखिए, अपना ओ वैलेट
पर नजर रखिए, किसी का बात पे मत ध्यान दीजिए। मेरा जितना भी जो कुछ देखना है बैक ऑफिस, मेरा वो फाउंडर में जाइए, बैक ऑफिस में देखिए कि हाँ हमारे एस सर क्या बोले हैं, क्या लिखे हैं, क्या जानकारी दिए हैं। क्योंकि लीडर तो बहुत तरह का है, बहुत कुछ बोलते हैं, इसीलिए किसी का बात पे भरोसा ना करके अपना बैक ऑफिस में रहिए और अपना आईडी पासवर्ड सबको बचा के रखिए। क्योंकि बहुत हैकर लोग बहुत तरह का कर रहा है, दिमाग दौड़ा रहा है, लेकिन अपने आप में सब कुछ तैनात रहिए, सब कुछ का जानकारी रखिए, जागरूक रहिए, यही सबको कहना है। और जितने भी पार्टिसिपेट अभी हैं, सबको इससे निवेदन है, ऑन पेसिव जिंदाबाद है और जिंदाबाद होगा। ऑन पेसिव में लगे हुए हैं, इसी तरह लगे रहिए, बने रहिए। क्योंकि कोई भी कंपनी, कोई भी सीईओ आज तक इस तरह अपना फाउंडर से बात नहीं किए हैं। थे हम छुप छुप के मीटिंग देखते थे। अगर मेरा ऑन पेसिव में आने का बात कहानी आप लोग के पास रखे तो बहुत टाइम हो जाएगा, नहीं तो हम भी बहुत चोरी छिपे इसमें आए हैं। क्योंकि औरत हूँ और जेंट्स के आगे औरत का बात नहीं चलता है। एक जेंट्स हो जो वो पैसा कमाते हैं तो वो बोलते हैं मेरा पैसा इधर उधर मत करो, सबका जेंट्स सबके घर वाले सबका। लेकिन बहुत छल चातुरी से, बहुत इसे हम ऑन पेसिव को लिए हैं और ऑन पेसिव में आए हैं। तो ऑन पेसिव का डंका तो मैं बजाऊंगी और मुझे पूर्ण विश्वास है ये ऑन पेसिव क्या है। अगर ऐसा वैसा कंपनी होता तो आज 5 साल से जो देख रहे हैं ये जलवा हमको देखने नहीं मिलता। और रही बात एप्पल्स आने का, विड्रॉल होने का, सारा चीज होगा, सारा चीज होगा। क्या बोलता है, देर आया दुरुस्त आया। हमको अपना विश्वास है, अपने आत्मविश्वास से भी मैं कहती हूँ कि ऑन पेसिव जिंदाबाद। ऑन पेसिव दुनिया चेंज करने आए हैं, हमारे ह्यूमैनिटी को मदर टेरेसा बनाएंगे बोले हैं यार सर, जरूर बनेंगे। घर घर मदर टेरेसा एकदम श्योर, जो के फाउंडरशिप लिए हैं। आराम से रहिए, बस बाकी अपने स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जबरदस्त रहिए। क्योंकि ऑन पेसिव जिंदाबाद, मैं एक बार नहीं हजारों बार कहती हूँ, हमारे एस सर जिंदाबाद, ऑन पेसिव जिंदाबाद। ओके सुजीत पाल सर, ओके ओवर टू यू। आज के लिए इतना ही काफी और मैं यहीं पर मेरे अपना वाणी को विराम देती हूँ। ओके ओवर टू यू महोदय, वी आर सो थैंक इन यू। इट टू विन इट। जय अनपेसिव, अनपेसिव जिंदाबाद जिंदाबाद। थैंक यू मैम, वेरी वेरी थैंक यू। थैंक बहुत यू। अच्छा, थैंक यू अनीता दास मैम, बहुत अच्छा वैल्यूएबल फीस रखा है। इसीलिए आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ भारत इंटरनेशनल चैंपियन ग्रुप से। आप बहुत बहुत थैंक यू, बहुत वैल्यूएबल फीस रखा है, उसीलिए आपको थैंक यू बोलना तो ভুলেগা नहीं। तो वेरी वेरी थैंक यू अनीता दास मैम। আপনি কিছুই ছাড়েননি, মনে হচ্ছে যেন আপনার আরো যেন কথা শুনি। তো যাই হোক, কথা তো একটা ভ্যালুয়েবল সময় আছে, ব্যাপার আছে। যাই হোক, আমাকে ক্ষমা দৃষ্টিতে দেখবেন। তো আপনার কোনো মনোমুগ্ধর কথা যেন আরো যেন মনে হচ্ছিল, যেন শুনতে ইচ্ছা করছিল। যাই হোক ম্যাম, এইভাবে সাথে থাকবেন ম্যাম। তো যাই হোক, সময়ের দিকে ধ্যান দিয়ে ম্যাম, আমাদের চিফ গেস্ট মিস্টার মহেন্দ্র সিং গোলা স্যার উপস্থিত আছে। আমি হ্যান্ড ওভার করছি আমাদের বিশিষ্ট ম্যামকে, অনিতা দাস ম্যামকে। আপনি আজকের এই ওয়েবিনারটি সুন্দরভাবে আগের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলুন এবং আমাদের চিফ গেস্ট আছে ওনাকে ওয়েলকাম করে নিয়ে এগিয়ে চলুন। মোস্ট ওয়েলকাম মিসেস অনিতা দাস ম্যাম। यस, कंटिन्यू मैम। यस 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 सर, मुझे दोबारा बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जरूर जरूर। मैं लेकिन मैं सर सबको तो देख नहीं पाऊंगी, सिर्फ अभी सर को बुला लेती हूँ। महेंद्र सिंह गुला सर, आपका सुस्वागतम सर। बहुत अच्छा, आज चीफ गेस्ट के रूप में सर आइए सर, आपका भी मुंह से सुने मैं बहुत फिदा हो जाऊंगी, बहुत खुश हो जाऊंगी सर। आप लोग एक इतना नॉलेजेबल सर लोग हैं, जो आप ही लोग के पास तो हम लोग सीखती हूँ, आप ही लोग के बल से तो हम लोग इतने आगे बढ़े हैं। तो आइए सर, मोस्ट वेलकम आपका सर, आइए। महेंद्र सिंह गोला सर, ओके सर। जी धन्यवाद मैम, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ओके ओके।
सबसे पहले तो गौतम सर का धन्यवाद, जो उन्होंने कल मुझे फ़ोन किया था रात को। कल मैं उनको फ़ोन रिसीव नहीं कर सका और दिन में उन्होंने मुझे मैसेज किया था, फिर मैंने उस मैसेज का रिप्लाई दिया। तो कुल मिलाकर के हम सब लोग यहाँ पर क्यों हैं? हम सब लोग एक दूसरे से नॉलेज ले रहे हैं, सीख रहे हैं, बिजनेस में क्या करना है। और अगर ये वेबिनार नहीं होंगे तो फिर हो सकता है कि हमारा विश्वास जो है ऑन पैसिव से ही उड़ जाए, क्योंकि जब तक ये वेबिनार हो रहे हैं तब तक एक बहुत बड़ा एक बिलीफ सिस्टम हम लोगों के मन में है। और अभी मार्टी टिगामो सर ने एक बात कही थी कि अगर जो एक्सटेंशन हम लोगों को मिल रहा है 10-10 दिन का, अगर ये मिलना बंद हो जाए तो वेबिनार बंद हो जाएंगे। तो ये वेबिनार बंद नहीं होने चाहिए, ये वेबिनार ऐसे ही चलते रहने चाहिए। और ज़रूरी भी है, अगर ये वेबिनार बंद हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं ओक कनेक्ट जिस स्पीड से ये अपडेट हो रहा है और जिस तरीके से ये टेस्टिंग चल रही है यहाँ पे, तो सही तरीके से टेस्टिंग भी नहीं हो पाएगी और हम इसको परफेक्ट नहीं बना पाएंगे। तो हर एक काम जरूरी है यहाँ पे, और एस सर को अच्छे से पता है कि यहाँ पे कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है, और ओ कनेक्ट को किस तरीके से परफेक्ट बनाना है। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर करने के लिए। तो अभी आपने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया अभी करंट सिनेरियो में क्या चल रहा है, किस तरीके की जर्नी चल रही है ऑन पैसिव के अंदर, और इस समय हम किस पोजीशन पर पहुंच चुके हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से एक्सप्लेन किया। और अभी हम सब लोगों को बेसब्री से इंतज़ार है अपने पेंडिंग विड्रॉल्स, वेरिफिकेशन प्रोसेस एंड एस मुफारिस सर ने जो प्रोडक्ट हमारे लिए लाइंड अप किए हुए हैं उन सारी चीज़ों का इंतज़ार है। कुल मिलाकर के एक बिजनेस जो हम करना चाहते हैं वो बिजनेस अभी यहाँ पर शुरू नहीं हो पाया है, और इसलिए हम यहाँ पे बहुत जल्दी ये चाहते हैं कि बिजनेस शुरू हो जाए, जिससे कि हम सब लोगों को यहाँ पर इनकम आनी शुरू हो जाए और हम कस्टमर बनाना शुरू कर दें। क्योंकि बिजनेस वही होता है जिसमें सेलिंग, परचेजिंग और कस्टमर का आना जाना ये सब कुछ लगा रहता है। ये लोगों का बिजनेस है और इसलिए हमें यहाँ पे लोगों को लाना हमारी एक सबसे बड़ी प्रायोरिटी हो जाएगी यहाँ पर, और हम सब लोग बिजी हो जाएंगे। तो अभी इस समय ये एक ऐसा माहौल है कि कभी कुछ लोग नेगेटिव हो जाते हैं, कभी कुछ लोग पॉजिटिव हो जाते हैं। जब ऐसा नहीं आ पाते हैं, जब उनको अपने मन के मुताबिक अपडेट नहीं मिलती है, तो कुछ लोग अपने आप ही नेगेटिव हो जाते हैं, उल्टा सीधा भी बोलने लगते हैं, कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं कि हम तो सोच रहे थे कि इसके बारे में कुछ होगा, इसके बारे में कुछ बताया जाएगा, लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं बताया। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव का जो माहौल है वो चलता रहेगा जब तक ये बिजनेस सही तरीके से यहाँ पर स्टार्ट नहीं हो जाता। और जब तक ऐसा पूरी तरीके से इस बिजनेस को धरती पर, इस जमीन पर उतार नहीं देते, तब तक ये सारा का सारा सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन एक चीज मैं आपको और भी बताऊं, गौर करने वाली बात यह है कि अभी हमारे फाउंडिंग मेंबर्स के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो टेक्नोलॉजी के बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते हैं, जिनको ज्ञान नहीं है, जिनको सिर्फ और सिर्फ मोबाइल तो चला लेते हैं, लेकिन वो किस तरीके से अपने आईडी को किस तरीके से ओपन करें, किस तरीके से लॉग आउट करें, ओप कंट को किस तरीके से इस्तेमाल करें, ऐसे बहुत सारे लोग हैं अभी जिनको इसके बारे में इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है। और जिन लोगों के पास एंड्रॉयड फ़ोन आज तक नहीं है, उनको सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जब यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं तो कुछ नॉन फाउंडिंग मेंबर्स की वीडियो भी आ जाती हैं, जिसको लेकर के और भी बहुत सारे सवाल उनके मन में आ जाते हैं। अब इसको लेकर के वो सारे के सारे सवाल आपके पास आते हैं या हमारे पास आते हैं, फिर उनको समझाते हैं। तो हमें अभी जैसा कि लास्ट में कहा कि हमें बैक ऑफिस में सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, इकोसिस्टम की अपडेट सेक्शन में सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, और हमारे जो ग्लोबल लीडर्स हैं, हमारे एस मुफारिस सर की मीटिंग्स होती हैं उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि यहीं से ही हमें एक सही इन्फॉर्मेशन मिलती है, एक असली इन्फॉर्मेशन हमें यहीं से मिलती है। तो ये एक ऐसी जगह है, अगर हम यहाँ पे अपडेट रहते हैं तो हम हमेशा अपडेट रहेंगे। तो ये जो बिजनेस अपना बन के तैयार हो रहा है, ये एक ऐसा बिजनेस है जो हमेशा आपकी जेब के अंदर रहेगा, जहां से चाहें आप वहां से उसको ऑपरेट कर सकते हैं। आप इस दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, आप वहां रह करके भी अपना ये बिजनेस कर सकते हैं।
लेकिन आप कर तभी पाएंगे जब आपको सही तरीके से इस बिजनेस को ऑपरेट करना आता होगा, क्योंकि ये एक नॉर्मल बिजनेस नहीं है, ये टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस है। इसमें सबसे ज़्यादा आपको ख्याल रखना पड़ेगा अपनी सिक्योरिटी का, इसमें सबसे ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा आपको अपनी प्राइवेसी का। आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर ऐसे बहुत सारे फ़ोल्डर्स होंगे, बहुत सारे ऐसे फ़ोटोज़, वीडियोज़ होंगी, ऐसी बहुत सारी प्राइवेट चीज़ होंगी, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके मतलब की होंगी, और इसी पर्पज़ से आप किसी को फ़ोन देना नहीं चाहते। हमेशा उस पे लॉक लगा के रखते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से ये बिज़नेस भी आपका एक बहुत एक कह सकते हैं प्राइवेसी है आपकी ये, जिसके बारे में किसी को पता नहीं होना चाहिए कि आप क्या करते हैं इस फ़ोन से। क्योंकि हर एक बिज़नेस की अपनी कुछ ना कुछ प्राइवेसी होती है, कुछ ना कुछ सीक्रेट चीज़ें होती हैं, और अगर वो सीक्रेट चीज़ें लीक हो जाती हैं तो फिर आप उस बिज़नेस से या अपनी उस आईडी से कह सकते हैं इकोसिस्टम से हाथ धो बैठेंगे। क्योंकि आपको पता है कि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, उस तरीके से दूसरी साइड में हमारे हैकर्स भी अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, हर एक चीज़ का तोड़ निकाल रहे हैं कि इसको, इस आईडी को, या इस पासवर्ड को, या इस डेबिट कार्ड को, या इस वेबसाइट को हम किस तरीके से हैक कर सकते हैं, किस तरीके से इसका डेटा हम ले सकते हैं। क्योंकि डेटा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डेटा ही आज के दौर में और आने वाले टाइम के अंदर डेटा को सिक्योर करना ही आपका एक मेन पर्पज़ रह जाएगा। अगर बिज़नेस को सिक्योर करना है तो आपको डेटा को सिक्योर करना आपको सीखना होगा। अगर आपने डेटा को सिक्योर करना सीख लिया तो आपका बिज़नेस, चाहे वो इंटरनेशनल बिज़नेस, डिजिटल बिज़नेस, कैसा भी बिज़नेस हो, अगर वो इंटरनेट पर है तो आपके बिज़नेस से कोई टच भी नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ पे जो लोग सिर्फ़ और सिर्फ़, इस समय मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसे की राह देख रहे हैं, पैसा कब से आना शुरू हो जाएगा, तो मैं आपको 100% एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, आने वाले टाइम के अंदर अगर ऐसी कोई भी घटना अगर हमें देखने को मिलती है, तो ऐसे लोगों के बीच से ही वो निकल के आएगी, जिन लोगों ने अपने टेक्नोलॉजी पे, अपने इकोसिस्टम पे ध्यान नहीं दिया, इसको सिक्योर कैसे किया जाए, उनका सारा का सारा ध्यान पैसों के ऊपर था। क्योंकि ऐसी शिकायतें मुझे पूरा यकीन है आने वाले टाइम के अंदर ज़रूर निकल के आएँगी। अब 14 लाख लोग हैं, अब 14 लाख लोगों में आपको अच्छे से पता होगा कि ऐसे तो बहुत सारे लोग मिल ही जाते हैं। हैकर्स को ऐसे तो लोग मिल ही जाते हैं कि उनकी बातों में लोग आ ही जाते हैं। अभी आप सही तरीके से अलर्ट हो, मैं अलर्ट हूँ, अगर आपके पास कोई भी सस्पिशियस कॉल आती है, कोई भी अगर संदिग्ध कॉल आती है आपके पास, तो आप अलर्ट हो जाते हो कि हाँ, मेरे साथ कुछ धोखा हो सकता है। लेकिन 150 करोड़ की आबादी में उनको 1000-2000 लोग तो मिल ही जाते हैं। अब उनको 1000-2000 लोग मिल गए, उनका काम चल गया। उनका तो जो टारगेट था वो पूरा हो गया। अब ऐसे ही हम 14 लाख लोग हैं। अब 14 लाख लोगों में अगर हम अभी से इन सारी चीज़ों की तरफ फ़ोकस नहीं करेंगे, तो उनको 100, 200, 500 लोग तो मिल ही जाएँगे 14 लाख लोगों में। और 14 लाख लोगों में 100, 200, 500 लोग मिल जाएँगे, इसी से ही हमारी कंपनी का नाम बदनाम हो जाएगा। इसी से ही हमारी कंपनी का नाम जो है, पता नहीं किस-किस तरीके से लोग जो है उछालने लगेंगे। इसलिए हमें यहाँ पे अपनी टेक्नोलॉजी पे भी फ़ोकस करना है, अपनी प्राइवेसी पे फ़ोकस करना है, अपने डेवलपमेंट पे फ़ोकस करना है। लेकिन अभी लोगों की जो सोच है, वो अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ वहीं तक ही बनी हुई है। जब तक कहते हैं कि बादाम खाने से अकल नहीं आती है, जब तक उनको 2-4 ठोकरें नहीं पड़ेंगी ना, तब तक उनको अकल नहीं आने वाली है। तो इसलिए यहाँ पर अकल तभी आएगी जब उनको 2-4 ठोकर लगेंगी, 2-4 ठोकरें पड़ेंगी। उसके बाद वो कुछ ना कुछ जो है समझने के लिए विवश हो जाएँगे कि हाँ, हमें इन सारी चीज़ों पे फ़ोकस करना ज़रूरी है। तो ये एक बिज़नेस, एक ऐसा बिज़नेस है जिसमें डेटा सबसे ज़्यादा मायने रखता है, और डेटा अगर आपके पास है, तो आपको उतना ही ज़्यादा यहाँ पर सिक्योर रहना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि डेटा कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है।
तो कुल मिलाकर के अगर ये देखा जाए कि हम यहाँ पर अगर अपने बिजनेस को सही तरीके से करना चाहते हैं तो हमें अपने डेटा को सही तरीके से सिक्योर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज़ कई बार कहा गया है कि अगर आप एक आईटी कंपनी के अंदर हैं तो आने वाले टाइम के अंदर डेटा ही आपकी एक नई करेंसी के रूप में सामने आने वाला है। और आईटी कंपनी तो क्या, ये पूरी दुनिया ही डिजिटल होने वाली है। जब पूरी डिजिटल दुनिया ही हो जाएगी तो हमारे चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ डेटा ही रहेगा। अगर आप किसी का फोटो भेज रहे हैं, किसी से मीटिंग कर रहे हैं, पैसे का लेन देन कर रहे हैं, आपके पास हो सकता है कि आने वाले 10 से 15 सालों के अंदर हमारे जो कॉइन्स हैं और ये जो पैसे हैं ये सब बंद हो जाएं। टोटल पैसा हमारा सिर्फ और सिर्फ डिजिटल तरीके से ही लेन देन होता रहे। और ऐसा होगा तो अगर इन टोटल दुनिया पूरी डिजिटल हो जाती है तो सिर्फ और सिर्फ डेटा ही है जो आपको पूरी तरीके से यहाँ पर बिजनेस करने के लायक बनाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है फोन पे। अब फोन पे के पास क्या है, सिर्फ डेटा ही तो है। उसने अपना एक सिस्टम डिजाइन किया, आरबीआई से अथॉरिटी लिया, परमिशन लिया, अपने आप को यहाँ पर लीगली रजिस्टर किया और काम करना शुरू कर दिया। और आज बहुत सारे कस्टमर हैं जो फोन पे का इस्तेमाल करते हैं। ये क्या है, अगर हम फोन पे से लेन देन करते हैं, पैसा भेजते हैं, ये डेटा ही तो है। पैसे तो जाते नहीं हैं आपको। अगर मैंने 10,000 रुपये भेजने हैं तो 10,000 नंबर चले जाते हैं आपके फ़ोन में। मैंने अपने फ़ोन से ट्रांसफ़र कर दिए और आपके फ़ोन में चले गए। लेकिन फ़ोन तो एक माध्यम है, फ़ोन पे तो एक मीडिएटर है, लेकिन वो हमारे बैंक अकाउंट से नंबर कट जाते हैं और दूसरे के बैंक अकाउंट में वो नंबर जुड़ जाते हैं। ये क्या है, एक डेटा ही तो है। एनालॉग सिग्नल से लेकर के डिजिटल सिग्नल में हमारा डेटा बदल जाता है, क्योंकि जो डिजिटल सिग्नल होता है वो हवा में होता है, सॉरी, जो एनालॉग सिग्नल होता है वो हवा में होता है और जैसे ही वो डिजिटल सिग्नल में बदलता है वो हमारे फ़ोन में और मोबाइल फ़ोन में पहुंच जाता है। तो ये बिजनेस एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल के बीच ही चलने वाला है, चाहे फिर आपका टेक्स्ट हो, वीडियो, ऑडियो, फोटो, कुछ भी हो। इसलिए इस बिजनेस को हमें सीरियसली इसलिए लेना है ताकि हम अपने इस बिजनेस की प्राइवेसी के बारे में भी समझ सकें। हमें कहाँ पर सिक्योरिटी रखनी है, कहाँ पर नहीं रखनी है, किस व्यक्ति को हमें इस बिजनेस के बारे में बताना है, किसको नहीं बताना है, प्रोडक्ट को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, किस तरीके से नहीं करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं इस बिजनेस के अंदर। आज इंडिया ही नहीं बल्कि 200 कंट्रीज़ के अंदर हमारे ऑन पैसिव का विस्तार हो चुका है, 200 कंट्रीज़ के अंदर। और ये पूरी दुनिया के अंदर किसी बिजनेस को करना इतना ज़्यादा आसान नहीं होता है। बहुत सारे नियम कानून होते हैं, उनको फॉलो करना है। आज लोग डिप्रेशन में क्यों हैं? उसका कारण है कि सब लोगों का पूरा फोकस पैसे पे चला गया है। अगर आप अपना पूरा फोकस पैसे पे ना लगा करके अपना फोकस पूरा काम पे लगाएं, पैसा तो आ ही जाएगा, तो हम इतना ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। इसलिए हमें यहाँ पर पूरा फोकस अपने बिजनेस पे लगाना है, जो हम अपनी पर्सनल लाइफ में इस समय कर रहे हैं। आज पूरी दुनिया, इंडिया के अंदर आपको पता है कि पूरी दुनिया में इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा फाउंडिंग मेंबर हैं, सबसे ज़्यादा हैं। और आने वाले टाइम के अंदर इनकम भी यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा आएगी। इनकम टैक्स भी सरकार को यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा मिलेगा और सबसे ज़्यादा यहाँ पर ही अपने आने वाले टाइम के अंदर लोग एक मिलियनियर भी बनने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से बात की जा रही थी अभी, प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर और इस तरीके से बहुत सारे लोग हैं जो अपना काम कर रहे हैं, हम उनसे भी आगे निकल जाएंगे। ये बात उसी टाइम हमें पता चलेगी कि हम कितने आगे निकलेंगे। ये बात उसी वक्त पता चलेगी कि हम किस व्यक्ति से कितना ज़्यादा ऊपर रहने वाले हैं, फाइनेंशियली हम कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाले हैं। क्योंकि हर एक बिजनेस के
आप हमेशा ध्यान रखना, एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों ही होते हैं। अब यहाँ पे कोई एक व्यक्ति है, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि एक व्यक्ति है जो सब्जी बेचता है और उसको कल से ही जो है 2 लाख रुपए महीने की इनकम आने लगे और उस इनकम को पाने के लिए उसको कोई भी मेहनत ना करनी पड़े, तो उसके नखरे बढ़ जाएंगे। बहुत सारे काम ऐसे होंगे जो उसके पर्पज के होंगे, जो उसके लायक होंगे, वो भी करने से वो मना कर देगा। तो हर एक काम को करने के, हर एक बिजनेस को करने के एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते ही होते हैं। इसलिए हमें इस बिजनेस को इस तरीके से करना है जिससे कि उस व्यक्ति को इस बिजनेस की वैल्यू पता चले। सिर्फ ये नहीं है कि लेटे लेटे उसको इनकम आती रहे, फिर तो वो आलसी हो जाएगा इंसान। इसलिए उस व्यक्ति को यहाँ पर मेहनती बनाना भी ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर अपने बिजनेस की वैल्यू को बताना भी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम बिजनेस की वैल्यू नहीं बताएंगे तो कहीं ना कहीं उसके डिसएडवांटेजेस भी हमको देखने को मिल सकते हैं। तो जो कंपनी ने कहा है वो धीरे धीरे ज़रूर पूरा होगा। यहाँ पर हम सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं। गरीबी को दूर करना, सपनों को पूरा करना, लोगों की हेल्प करना, करप्शन को दूर करना, एंड इसके अलावा और भी बातें हैं और भी कुछ कमिटमेंट हैं कंपनी के जो हम सब लोगों से कहे हैं, वो सब पूरे होंगे, लेकिन इसके लिए समय लगेगा। अब करप्शन की अगर हम बात करते हैं तो करप्शन यहाँ पर कौन से करप्शन की बात की जाती है? यहाँ पे उस करप्शन की बात की जाती है ज्यादातर जो इंटरनेट के ऊपर सबसे ज्यादा करप्शन होता है। ऐसे बहुत सारे हिडन करप्शन है जिसके बारे में हमें जानकारी भी नहीं है। मैं उन करप्शन की बात नहीं कर रहा हूं जहां पर इलीगल वीडियोस बना ली जाती हैं और लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है। इसके अलावा और भी कई सारे ऐसे पॉइंट हैं जहां पर लोगों का करप्शन किया जाता है। करप्शन का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे हिडन कॉस्ट, हिडन तरीके होते हैं जहां से लोगों से पैसे ऐंठे जाते हैं, लोगों की जेब से पैसे निकाले जाते हैं। ऐसे कई सारे तरीके होते हैं। तो उन सारी चीजों को हमें रोकना है। बहुत ही कम कीमत वाला प्रोडक्ट भी अगर वो हमें बहुत ज्यादा महंगा करके मिल रहा है तब भी वह एक प्रकार का करप्शन ही है। अगर कोई प्रोडक्ट डिजिटल मान के चलो कि हमें $100 का मिल रहा है और वही दूसरी कंपनी उसको $1000 का दे रही है तो वह करप्शन कर रही है। तो इस टाइप की बहुत सारी हिडन कॉस्ट हैं जो हमें धीरे धीरे करके पता चलेगी और जब लोगों को इसके बारे में जानकारी होगी तो लोग अपने आप ही खींचे चले आएंगे ऑन पैसिव की तरफ। हमें ज़्यादा लोगों को कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसे इसकी कई सारे और भी रीजन हैं जिसकी वजह से हम यहाँ पर कामयाब होने वाले हैं। हमारा फोकस सिर्फ कामयाबी की तरफ है, हमारा फोकस सिर्फ अपने सपनों की तरफ है। एस मुफारे सर का जो विजन है, मिशन है, उसको कंप्लीट करने की तरफ है। क्योंकि अगर हमारी सोच एस मुफारे सर से मिलती है तो 100% इस दुनिया में कामयाब होने से आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी सोच उनसे मिलती है। इसका मतलब आप 1000% पॉजिटिव हैं। कोई भी व्यक्ति आपको नेगेटिव नहीं कर सकता। तो यहाँ पर जल्दबाजी हमें किसी भी काम में नहीं करनी है। अगर हम जल्दबाजी करते हैं तो हमसे गलतियां होने के पूरे यहाँ पर चांसेस हैं और इसलिए एस मुफारे सर ने किसी भी काम को लेकर के कोई भी जल्दबाजी नहीं की है। बहुत ही आराम से सिस्टमैटिक वे में वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। कंपनी सिर्फ और सिर्फ हमारी भलाई के बारे में सोच रही है, अपने कमिटमेंट पर खरा उतरने की पूरी कोशिश कर रही है। 2018 से लेकर के अगर हम 2024 तक एक नज़र दौड़ाते हैं तो हम सब लोग एक एनालिसिस ये करते हैं कि कंपनी बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, जितना शायद हमें अंदाज़ा भी नहीं था, उतनी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। सो हम सब लोग यहाँ पर बस 2-3 चीज़ें हैं जिस पर हमें फोकस करना है। नंबर 1, अपने आप को डेवलप करना है। नंबर 2,
कंपनी के साथ जो हमारी सोच है उसको मैच कराना है। नंबर 3, अपनी प्राइवेसी को लेकर के आपको हमेशा अलर्ट रहना है। एंड नंबर 4, यहाँ पर आपके साथ किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति धोखा ना कर पाए, इसीलिए अपने बिजनेस का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लेना है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है आपके आसपास जिसका आईडी पासवर्ड किसी दूसरे के पास है, तो आपका मतलब इसका मतलब यही है कि उसका कंट्रोल दूसरे के पास है, वो अपने पास रख ले। तो ये 4-5 चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें यहाँ पर अच्छी तरीके से फोकस करना है। बाकी धीरे धीरे करके बिजनेस ये आगे बढ़ता रहेगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हमें सीखने के और भी बहुत सारे तरीके यहाँ पे मिलते चले जाएंगे, उनको सीखते चले जाएंगे। और बिजनेस में कामयाब होने के लिए अलर्ट रहना और सीखना ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग। क्योंकि अगर आप सीखेंगे तो आप अपनी नई जनरेशन को जो आपके सामने है आप उसको सिखा सकते हैं। अगर आप नहीं सीखेंगे तो आप उसको सिखा नहीं सकते, और ये बिजनेस फिर आगे जो हमारी जनरेशन है वो उस जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। तो उसको सिखाना भी ज़रूरी है, इसलिए हमें सीखना ज़रूरी है। ओके, थैंक यू सो मच। और बाकी एस मुफारे सर की जो भी अपडेट आती रहेंगी उसके ऊपर हम बराबर जो है ध्यान देते रहेंगे। और बैक ऑफिस में तो हमें बने ही रहना है, क्योंकि वहाँ पे जो अपडेट आती है उसका तो कहना ही अलग है। और एस सर की एक एक बात को हमें फॉलो 110% करना ही करना है। इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सो थैंक यू सो मच एंड बैक टू ओवर एंड ओवर टू होस्ट। হ্যালো, থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। সুজিত পাল স্যার আপনি আছেন? সুজিত পাল স্যার, হ্যালো স্যার। ইয়েস ম্যাম, ইয়েস ম্যাম, আমি আছি। স্যার আপনি কন্টিনিউ করুন, একটু আমি অসুবিধায় আছি। ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি থ্যাংক ইউ অনিতা দাস ম্যাম। আপনার ভ্যালুয়েবল পিস এবং আর একজন আমাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ইন্টারন্যাশনাল লিডার মিস্টার মহেন্দ্র সিং গোলা স্যার, ভ্যালুয়েবল পিস উপস্থাপনা রাখলেন ভারত ইন্টারন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন গ্রুপের পক্ষ থেকে। আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর আমাদের মহেন্দ্র সিং গোলা স্যার খুব সুন্দর উপস্থাপনা রেখে গেলেন বেঙ্গলি ওয়েবনারে, বেঙ্গলি মঞ্চে। আপনাদেরকে এই রকম ভাবেই প্রতিনিয়ত পেতে চাই। আপনারা প্রতিনিয়ত আসবেন এবং সুন্দর উপস্থাপনা, মনোমুগ্ধকর উপস্থাপনা নিয়ে উপস্থিত হবেন, এইটুকু কামনা করব ভারত ইন্টারন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন গ্রুপের পক্ষ থেকে। তো আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন বিভিন্ন স্যার এবং ম্যাম, প্রত্যেকেই আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাই। আমাদের মধ্যে বিশিষ্ট ম্যাম উপস্থাপনায় আসবেন এবং আপনার ফিডব্যাক দেবেন। অনিতা শ্রীবাস্তব ম্যাম, মোস্ট ওয়েলকাম, আপনি আসুন। আমাকে যদি শুনতে পান অনিতা শ্রীবাস্তব ম্যাম, অবশ্যই মাইক আনমিউট করে মোস্ট ওয়েলকাম অনিতা শ্রীবাস্তব ম্যাম। তো অবশ্যই আমাদের মধ্যে বিশিষ্ট স্যারেরা সুন্দর উপস্থাপনা রেখে গেলেন, সেই বিষয়ে ফিডব্যাক এবং আনন্দ দেওয়ার জন্য প্রত্যেকেই আসবেন মাইক আনমিউট করে। আমাদের মধ্যে হয়তো ম্যামকে অ্যাভেলেবেল পাচ্ছি না, অবশ্যই অ্যাভেলেবেল হলে অবশ্যই মোস্ট ওয়েলকাম অনিতা শ্রীবাস্তব ম্যাম। তো নো প্রবলেম, ওনাকে কোনো কারণে হয়তো পাচ্ছি না। তো আমাদের মধ্যে বিশিষ্ট স্যার উপস্থিত আছেন। বামাচরণ নস্কর স্যার, মোস্ট ওয়েলকাম স্যার। আমাকে যদি শুনতে পেয়ে থাকেন তো মোস্ট ওয়েলকাম, ফিডব্যাক আসুন। থ্যাংক ইউ। ঠিক আছে, খুব ভালো লাগছে। শুনলাম মহেন্দ্র সিং গোলা স্যারের স্পিচ, শুনলাম অনিতা দাস ম্যামের স্পিচ শুনলাম, খুব ভালো লাগছে। আমি তো রাস্তায় আছি। যাক, খুব ভালো অনুষ্ঠানটা, আজকে সেশনটা খুব ভালো হচ্ছে, বেশ ভালো লেগেছে। স্পিচ শুনেছি, আমাদের মধ্যে বিশ্বনাথ সাউ স্যার রয়েছেন, উনিও স্পিচ দেবেন। তো খুব ভালো একটা সেশন চলছে। তো পুরো ডেটা নিয়ে যেটা শুনলাম সেটা অসাধারণ। আমাদের শুধু শুনলেই হবে না, সেটাকে নোট করে রাখতে হবে, সেটা মাথায় রাখতে হবে। এবং অনিতা দাস ম্যাম খুব ভালো স্পিচ দিয়ে গেলেন। তো মহেন্দ্র সিং গোলা স্যার যেটা বললেন যে ডেটা সম্বন্ধে, আমাদের সিকিউরিটিটা কিরকম সেই বিষয়ে, তো খুব ভালো। তো আমার আর নতুন করে কিছু বলার নেই। ওভার টু ইউ সুজিত পাল স্যার। থ্যাংক ইউ।
থ্যাংক ইউ, অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ বামাচরণ নস্কর স্যার। আপনি রাস্তা থাকা সত্ত্বেও মাইক আনমিউট করে এসে উপস্থাপনা রাখলেন, অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। অবশ্যই প্রতিনিয়ত থাকার চেষ্টা করবেন। আমরা এই টাইমে আমরা সবাই উপস্থিত থাকি ভারত ইন্টারন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন গ্রুপে। তো আমাদের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে বিশিষ্ট স্যার উপস্থিত আছেন, তো মোস্ট ওয়েলকাম উত্তম রয় স্যার, মোস্ট ওয়েলকাম। ইয়েস, আমাকে শুনতে পাচ্ছেন স্যার? উত্তম রয় স্যার, Yes, sir. Yes, sir. ইয়েস, মোস্ট ওয়েলকাম স্যার। Okay, sir. Thank you. অনেক অনেক ধন্যবাদ সুজিত পাল স্যার। ভারত ইন্টারন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন গ্রুপের সম্মানিত হোস্ট ও কো-হোস্ট মহোদয়গণ, সবার চরণে আমার প্রণাম ও নমস্কার। আজকের অনুষ্ঠান অসাধারণ, দুর্দান্ত লেভেলের। প্রথম থেকে শুরু করে অনিতা ম্যাম, তারপর স্যার যেভাবে বলে গেলেন আমাদের ডাটা সম্পর্কে, আর বলার অপেক্ষা রাখে না। অসাধারণ স্যার, দুর্দান্ত। থ্যাংক ইউ স্যার। ওভার টু সুজিত স্যার। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ, অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আমাদের মধ্যে উপস্থাপনা আসলেন তো উত্তম রয় স্যার, অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই ভারত ইন্টারন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন গ্রুপের পক্ষ থেকে। আপনার মনোমুগ্ধকর উপস্থাপনা ভালো লেগেছে, অবশ্যই সাথে থাকবেন স্যার। আমাদের